हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज जहां हम सीख रहे हैं आइल्स रीडिंग पैसेजेस को हिंदी में कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं. एंड हियर आई हैव अनदर पैसेज फॉर यू. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, I have written down all the important vocabulary for you and you can take a screenshot of it. So as I mentioned earlier, अगर इस सीरीज को आप honestly follow करते हैं then achieving 8 bands, at least 8 bands in IELTS reading would be a piece of cake for you. Okay, यानी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा. So, without wasting any more time, let's get started. So, the title of the passage is William Gilbert and Magnetism. Okay, so paragraph A. The 16th and 17th centuries saw two great pioneers of modern science, Gilbert and Galileo. So 16वीं और 17वीं शताब्दियों ने देखा दो pioneers mean leaders, तो दो leaders को modern science के जो थे Gilbert and Galileo. Their eminent findings, eminent means famous, findings means discovery, खोज, made a big impact, उसने काफ़ी बड़ा प्रभाव डाला. So उनकी famous खोज ने काफ़ी बड़ा प्रभाव डाला. Gilbert was accredited father of science of electricity and magnetism. So Gilbert को उपाधि दी गई इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के साइंस के फादर की. The first modern scientist, पहले modern scientist की, a physician at the court of Elizabeth. Court means राज्य, Elizabeth, Queen Elizabeth. So Queen Elizabeth के राज्य के डॉक्टर की उपाधि दी गई. And an Englishman of learning, और एक सीखने वाले अंग्रेज की उपाधि दी गई. Okay. आगे बढ़ते हैं. Before him, उनसे पहले, the things known about electricity, जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में जानी जाती थी was what the ancients knew and nothing more than that. वो थी जो सिर्फ पूर्वजों को पता थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं. That means किसी ने रिसर्च नहीं की इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. लोडस्टोन. सो लोडस्टोन इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पैसेज का. लोडस्टोन का मीनिंग है मैग्नेट, चुंबक. So, lodestone had magnetic properties. चुंबक में थी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की properties. When amber, okay, so amber is a kind of resin which is derived from trees. यानी कि amber एक तरह की गोंद होती है जो पेड़ों से मिलती है. And jet होता है एक fossilized wood यानी कि एक पुरानी लकड़ी. जब उनको आपस में रब किया गया, रगड़ा गया, इट वुड, ये करता था अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर के कुछ टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था. और अदर सब्सटेंसेस ऑफ स्मॉल स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जिन चीज़ों में एक विशेष ग्रेविटी होती थी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता था. हाउएवर, हालांकि ही वॉजंट गिवन द रिकग्निशन, उन्हें वो पहचान नहीं दी गई ही डिजर्व्स, जो वो डिजर्व करते थे. Okay, paragraph B. Gilbert was born before Galileo. So Gilbert पैदा हुए थे Galileo से पहले. He was born on 24th May 1544. Okay, again, date important नहीं है unless it is given in the question. So he was born, वो पैदा हुए in an esteemed family. Okay, esteemed means सम्मानित, respectful, एक respectful family में. In UK's Colchester County, county is kind of जिला, एक जिले में. After going to grammar school जाने के बाद he went to study medicine. वो medicine पढ़ने गए at St. John's College, Cambridge. He graduated, वो graduate हुए in 1573 and then traveled to the continent. और उसके बाद वो महाद्वीप में travel किया उन्होंने. महाद्वीप कौन? यूरोप या यूके. And later settled down in London. और फिर वो लंदन में settle down हो गए. Paragraph C. He was a very eminent हमने ऊपर पढ़ा, famous and successful doctor. वो काफ़ी famous और successful doctor थे and was elected, और उन्हें चुना गया, was elected, passive voice, उन्हें चुना गया as the president of Royal Science Society. So Royal Science Society का president उन्हें चुना गया. He was appointed, again उन्हें चुना गया, to serve the Queen की सेवा करने के लिए. Queen कौन? Elizabeth first. As her personal physician. Okay, so वो थे उनके personal doctor and was later, और बाद में, knighted by the Queen.
क्वीन के द्वारा उन्हें उपाधि दी गई नाइट की यानी कि सर की। ही सर्व्ड हर फेथफुली अंटिल हर डेथ। उन्होंने क्वीन को फेथफुली वफादारी से सर्व किया, उनकी सेवा की, अंटिल हर डेथ जब तक क्वीन की मृत्यु नहीं हुई। बट सून आफ्टर द क्वींस डेथ ही डाइड ऑन दिस डेट। सो क्वीन की मृत्यु के बाद वो भी जल्द ही इस डेट को चल बसे। It was only a few months after his appointment as a personal physician to King James. So King James के personal physician बनने के कुछ ही महीनों बाद ऐसा हुआ। Okay, paragraph D. Although Gilbert was interested in chemistry first, so भले ही Gilbert पहले interested थे chemistry में, he later changed his work because of a large portion of the mysticism of alchemy involved. Okay, so पहले वो interested थे chemistry में, बाद में उन्होंने अपना field of interest, उन्होंने अपना work change कर दिया क्योंकि एक रहस्यवाद, mysticism एक रहस्यवाद था alchemy. Alchemy means study of metals जो आपस में change हो जाते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं. Okay, that is called alchemy. सो क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे इसमें, सच एज जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन मीन्स रूपांतर, आपस में बदल जाना, ऑफ मेटल्स, यस, सेम थिंग एज आई टोल्ड यू बिफोर। स्लोली, धीरे धीरे, ही बिकेम इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। सो धीरे धीरे वो फिजिक्स में इंटरेस्टेड होने लगे। एंड आफ्टर द ग्रेट माइंड्स ऑफ एंशियंट, particularly about the knowledge the ancient Greeks had about lodestone. ओके, सो जल्द ही वो फिजिक्स में इंटरेस्टेड होने लगे आफ्टर द ग्रेट माइंड्स ऑफ एंशंट, जो पुराने विद्वान लोग थे उनके बाद, पर्टिकुलरली स्पेशली अबाउट द नॉलेज, किस नॉलेज को लेकर के, जो नॉलेज एंशंट ग्रीक्स को थी अबाउट लोडस्टोन, मैग्नेट को लेकर, strange minerals with the power of with the power to attract iron. Okay, लोडस्टोन को लेकर और अलग अलग मिनरल्स जिनमें पावर थी आयरन को अट्रैक्ट करने की। Meanwhile, इस दौरान in 1588 when the Spanish Armada was defeated, जब स्पेनिश आर्मडा हार गए, ब्रिटेन had become a major seafaring nation. ब्रिटेन एक मेजर सीफेयरर्स कहलाते हैं, जो सेलर्स होते हैं, जो शिप्स को चलाते हैं। सो ब्रिटेन बन गया एक सी फेयरिंग नेशन, दैट मीन्स वहाँ पे बहुत सारे शिप्स आने जाने लगे। पेविंग द वे टू द ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ अमेरिका। ओके, पेविंग, पेव का मीनिंग होता है लेड द स्टोन, यानी कि रास्ता बिछा देना, मार्ग बिछा देना। तो मार्ग बिछा दिया उन्होंने ब्रिटिश सेटलमेंट का के लिए अमेरिका से। ओके, ब्रिटिश शिप्स रिलाइड ऑन द मैग्नेटिक कंपस। सो ब्रिटिश जो शिप्स थे वो रिलाई करते थे, आश्रित होते थे मैग्नेटिक कंपस पर। येट नो वन न्यू व्हाई इट वर्कड। फिर भी, हालांकि, किसी को नहीं पता था कि ये कैसे काम करता था या क्यों काम करता था। Was there a magnetic mountain at the pole, as described in Odyssey, which ships would never approach, or as Columbus said, did the pole star attract it? Okay, so was there a magnetic mountain at the pole? क्या पोल पर मैग्नेटिक माउंटेन था? As described in Odyssey, Odyssey एक फेमस बुक है ग्रीक्स की। जैसे कि ओडिसी में बताया गया था, क्या शिप्स वुड नेवर अप्रोच, कि शिप्स कभी नहीं जाते थे, और एज कोलंबस सेड, जैसे कि कोलंबस ने कहा था, डिड द पोल स्टार अट्रैक्टेड, कि कहीं पोल स्टार तो अट्रैक्ट नहीं करता। विलियम गिलबर्ट कंडक्टेड इंजीनियस मीन्स सिंपल, सरल। विलियम गिलबर्ट ने कंडक्ट किए सिंपल सरल एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम 1580 टू अंडरस्टैंड मैग्नेटिज्म फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। उन्होंने 20 सालों तक मैग्नेटिज्म को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। नेक्स्ट पैराग्राफ। गिलबर्ट्स डिस्कवरीज वर सो इम्पोर्टेंट टू मॉडर्न फिजिक्स। गिलबर्ट की डिस्कवरीज, फाइंडिंग्स, खोज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मॉडर्न फिजिक्स के लिए। ही इन्वेस्टिगेटेड, उन्होंने जांच की, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, नेचर स्वभाव। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के स्वभाव की उन्होंने जांच की। ही वॉज द वन हु कॉइंड द वर्ड इलेक्ट्रिक।
तो वही थे जिन्होंने वर्ड दिया इलेक्ट्रिक। अल्टीमेटली अंततः the beliefs on of magnetism were also twisted with superstitions like rubbing garlic on lodestone can remove its magnetism. So अंततः मैग्नेटिज्म के भी जो बिलीव्स थे वो भी ट्विस्टेड हो गए, यानी कि उनमें भी मरोड़ दिए गए, तोड़ दिए गए विद सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास, तो अंधविश्वास के साथ वो तोड़ मरोड़ दिए गए। जैसे कि क्या? रबिंग गार्लिक, लहसुन को रब करना लोडस्टोन पर, मैग्नेट पर, कैन रिमूव इट्स मैग्नेटिज्म, वो इसके मैग्नेटिज्म को हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। Even sailors believed the smell of garlic would even interfere with the action of the compass. और यहाँ तक कि सेलर्स को भी, सेलर वही सीफेयर्स जो शिप चलाते हैं, उनको भी यकीन हो गया कि गार्लिक की स्मेल उनके कंपस में या फिर कंपस के एक्शन में हेर फेर कर देगी, छेड़छाड़ कर देगी। Which is why the exteriors were forbidden to eat it near a ship's compass. और इसीलिए स्टीयर्स जो शिप के स्टीयरिंग को हैंडल करते थे वर फॉरबिडन, उन्हें साफ मना था, सख्त मना था, टू ईट इट, इसे खाना, लहसुन को खाना, गार्लिक को खाना, नियर शिप्स कंपस, कंपस के पास। Gilbert also found that metals can be magnetized by rubbing materials such as plastic, fur, etc. on them. और गिलबर्ट ने यह भी पता लगाया कि मैग्नेट को मैग्नेटाइज किया जा सकता है बाय रबिंग, उनके ऊपर रब करके, मटेरियल्स जैसे कि सच एज, फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लास्टिक, फर एक्सेट्रा ऑन देम, उन पर। He named the magnets North and South Pole. So उन्होंने नाम दिए मैग्नेट्स को नॉर्थ और साउथ पोल। Depending on its polarity, magnets can attract or repel. So इनकी पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैग्नेट अट्रैक्ट करते थे, कि अपनी ओर आकर्षित करते थे, या फिर रिपेल या दूर धकेलते थे। सो रिपेल करना, दूर धकेलना। इन एडिशन, और इसी के साथ, however, हालांकि a magnet always attracts an ordinary iron, और इसी के साथ एक मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट करता था साधारण आयरन को। ओके, आज भी करता है। Though हालांकि he started to study the relationship between electricity and magnetism, हालांकि उन्होंने पढ़ना शुरू किया रिलेशनशिप को जो थी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच। he did not finish it, वो इसे पूरा नहीं कर पाए। His research of static electricity using jet and amber only showed that objects with electrical charges can work like magnets that attract small pieces of paper and stuff. So उनकी रिसर्च स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, जिसमें उन्होंने इस्तेमाल किया था जेट एंड एम्बर का, ओनली शोड, उसने सिर्फ यही दिखाया कि ऑब्जेक्ट विद इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन वर्क, तो ऑब्जेक्ट जिनमें होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज वो काम कर सकते हैं मैग्नेट की तरह, जो अट्रैक्ट करते हैं स्मॉल पीसेस, छोटे पीसेस ऑफ पेपर, पेपर के छोटे पीसेस को, और स्टफ, स्टफ मीन्स चीज़ें, दूसरी चीज़ें। डूफे, अ फ्रेंच गाय डिस्कवर्ड, सो एक डूफे नाम का फ्रेंच आदमी था, उसने डिस्कवर किया, उसने ये खोज की दैट देयर आर एक्चुअली टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कि दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं एक्चुअली, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो थैंक्स टू डूफे हमें भी पता है आज नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही ऑल्सो क्वेश्चनड, और उसने सवाल उठाए, गिलबर्ट ने सवाल उठाए द ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमिकल बिलीव्स, इनके ऊपर ट्रेडिशनल, परंपरागत, पीछे से चले आ रहे एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय बिलीव्स, धारणाओं को लेकर। He didn't express in his quintessential beliefs whether the earth is at the center of the universe or in orbit around the sun, though he was Copernican. So उन्होंने express नहीं किया, उन्होंने नहीं बताया in his quintessential, quintessential means सर्वोत्तम, बेस्ट, अपने बेस्ट धारणाओं में, बेस्ट बिलीव्स में, कि कहीं सॉरी, कि कहीं अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में तो नहीं होती, कि अर्थ कहीं यूनिवर्स के सेंटर में तो नहीं, और इन ऑर्बिट अराउंड द सन, या फिर सन के अराउंड एक कक्षा में तो नहीं। दो हालांकि ही वॉज कॉपरनिकन,
कॉपरनिकन वो लोग कहलाते हैं जो कॉपरनिकस की थ्योरी को फॉलो करते हैं, एंड वो थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में सन बीच में है एंड बाकी सभी प्लैनेट उसके अराउंड घूम रहे हैं. ओके, सो ही बिलीव्ड दैट स्टार्स हैव देयर ओन अर्थ लाइक प्लैनेट्स. उनका मानना था कि स्टार्स के होते हैं खुद के अर्थ जैसे प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड दम, जो उनके चारों ओर घूम रहे होते हैं, एंड आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अर्थ, और वो अर्थ से इक्वल दूरी पर नहीं है, समान दूरी पर नहीं है. इक्विडिस्टेंट, समान दूरी. कंपासेस ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ. कंपास हमेशा ही नॉर्थ पॉइंट करता है बिकॉज द अर्थ इज लाइक अ जाइंट मैग्नेट, क्योंकि अर्थ एक काफ़ी बड़े मैग्नेट की तरह है. The Earth's polarity and the axis they spin on is aligned. So Earth के poles और वो axis, वो line जिस पे वो घूमती है, is aligned. वो दोनों एक ही line में है, aligned. He built an entire magnetic philosophy. उन्होंने बनाई एक पूरी magnetic philosophy on this analogy. So इस thought के ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी magnetic philosophy बनाई. He even equated the polarity of the earth to that of magnets. So उन्होंने अर्थ की polarity को बराबर कर दिया, बराबर रख दिया मैग्नेट के polarity से. He explained, उन्होंने बताया that magnetism was soul of the earth, कि magnetism अर्थ की soul है, आत्मा है, and a perfectly spherical lodestone, और अर्थ एक perfectly spherical गोल lodestone magnet है. So अर्थ एक गोल magnet है. When aligned with earth's poles, would keep moving by itself in 24 hours. सो जब अर्थ के पोल अलाइन हो जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, ये घूमती रहती है अपने आप 24 घंटे. ही फर्दर बिलीव्ड, और उन्होंने आगे बताया या माना, दैट सन्स एंड अदर स्टार्स, सन और दूसरे स्टार्स, वॉबल, शेक करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जस्ट लाइक अर्थ, अर्थ की तरह ही घूमते हैं, मूवमेंट करते हैं, अराउंड अ क्रिस्टल कोर, एक क्रिस्टल कोर के अराउंड, दैट मीन्स कोर, मुख्य रूप, मुख्य भाग जो होता है वो, उसके चारों ओर घूमते हैं. एंड थियराइज्ड, और थ्योरी बताई, दैट द मून माइट ऑल्सो बी अ मैग्नेट, कि मून भी एक मैग्नेट हो सकता है, दैट ऑर्बिट्स ड्यू टू इट्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ, जो घूमता है ड्यू टू के कारण इट्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ, तो अर्थ की तरफ जो इसका आकर्षण है उसकी वजह से घूमता है. Maybe this was the first proposal saying that a force might cause a heavenly orbit. और शायद ये पहला proposal था जिसने ऐसा कहा कि एक force है, एक शक्ति है जो कारण बनती है heavenly orbit, planets के घूमने का. Last paragraph, जी. In his revolutionary research, so उनकी क्रांतिकारी research methods में he used, उन्होंने इस्तेमाल किया experiments का, instead of के बजाय reasoning, तर्क वितर्क, और and pure logic, या सिर्फ logic के बजाय उन्होंने experiments का इस्तेमाल किया. Like the ancient Greek philosophers did, जैसे कि पुराने Greek philosophers ने किया. It was new in the scientific इन्वेस्टिगेशन, सो साइंस से रिलेटेड जांच में ये कुछ नया था. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वर नॉट इन फैशन टिल देन. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स उस समय तक फैशन में यानी कि ट्रेंड में नहीं थे. बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से साइंटिफिक एटीट्यूड एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म, द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स आल्सो नोन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल, वाज नेम्ड गिलबर्ट इन हिज ऑनर. ओके, सो उनके इस साइंटिफिक व्यवहार और उनके योगदान की वजह से जो था फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट, जैसे वेट वजन की यूनिट है किलोग्राम, ऐसे ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स जिसको नाम दिया गया मैग्नेटिक पोटेंशियल, उसकी यूनिट का नाम रखा गया गिलबर्ट इन हिज ऑनर, उनके सम्मान में. ही केयरफुली अप्रोच्ड इट, वो केयरफुली इसमें आगे बढ़े, ऑब्जर्व्ड इट, उसे जांचा परखा, एंड एक्सपेरिमेंटेड, और एक्सपेरिमेंट किया, रादर देन के बजाय द अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव आधिकारिक, और
डिडक्टिव डिडक्टिव मीन्स अनुमान लगाना, इन्फर करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना. सो आधिकारिक या फिर डिडक्टिव फिलोसफी ऑफ others that had laid the very foundation. Okay, सो बाकियों की तरह नहीं, इन लोगों की तरह नहीं, इनकी फिलॉसफी की तरह नहीं, उन्होंने उसको केयरफुली अप्रोच किया, ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंट किया, जिसने दैट हैड लेड, जिसने बिछाई फाउंडेशन, बेस फॉर मॉडर्न साइंस के लिए. एंड दैट्स इट गाइस, सो आवर पैसेज इज कंप्लीटेड. आई होप आपको समझ आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द वीडियो. एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर. So thank you so much. See you in the next video. Bye bye.